Good morning, students. Today we start the subject of information technology. Page number 7. Bit and byte. The computer memory is measured in terms of bit and bytes. The smallest unit of computer memory is a bit, means binary digit. कंप्यूटर मेमोरी का सबसे smallest unit है bit that can have one of the two values 0 और 1. वो डेटा कितना स्टोर करता है 0 और 1 फॉर्मेट में स्टोर करता है. A byte is the amount of a memory required to store a single character which can be a number, a letter or any special character. A bit is denoted by B means बीट का शॉर्ट फॉर्म क्या है स्मॉल बी एंड बाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी और बाइट का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या आता है कैपिटल बी. फॉर एग्जांपल टू स्टोर द वर्ड प्ले 4 बाइट और 32 बीट्स आर रिक्वायर्ड. जो हमारा प्ले वर्ड है वो स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स चाहिए 4 बाइट्स और 32 बीट्स लगेंगे. ये देखो आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट. 1 kilobyte is equal to 1 KB means 1024 byte. 1 megabyte का शॉर्ट फॉर्म क्या है MB है ना. आपका जो टेस्ट रहेगी यूनिट टेस्ट उसमें पूछे जाएंगे कि शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे. ठीक है तो देखो 1 megabyte means 1 MB is equal to 1024 KB. 1 gigabyte means 1 GB means equal to 1024 megabyte. 1 terabyte means 1 TB is equal to 1024 GB. Clear? Next a microprocessor. The microprocessor is also known as the central processing unit. Microprocessor का दूसरा नाम क्या है central processing unit means CPU of a computer. All calculation and comparison are done inside the CPU. For this reason, the microprocessor is referred to as the brain of the computer. CPU क्या है computer का brain है. Sometimes compared to the human brain. The speed of a computer system depends upon its microprocessor. जो कंप्यूटर का स्पीड रहता है मतलब वो कितना स्पीड ज्यादा जो आपकी जो कैलकुलेशंस रहती है वो फास्ट करता है वो किस पे डिपेंड रहता है माइक्रो प्रोसेसर पे. इंटेल i3 i5 i7 core 2 dual core and quad core are the commonly used microprocessor these days. A microprocessor or a CPU has 3 units namely control unit, arithmetic logic unit and memory unit. CPU के क्या है 3 units है वो देखेंगे हम. Control unit means CU का full form है control unit. The control unit controls the working of all parts of a computer. It ensures that the necessary input and outputs are supplied to the appropriate device of the computer. कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम है. Arithmetic logic unit means ALU. The arithmetic logic unit performs all mathematical and logical operations such as addition, subtraction, multiplication, division and comparison. ALU का काम क्या है जो आप ऑपरेशंस करते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कॉम्प्रिहेंशन करने का काम कौन करता है ALU करता है. Next है memory unit. The memory unit holds various types of information such as data, instruction, addresses and the intermediate result of a calculation. It works under the direction of the control unit to accept, hold and transfer instruction or data. Next motherboard. The motherboard also known as the system board. मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्या है सिस्टम बोर्ड. इज द बेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. क्या है मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का. वेयर द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर कार्ड्स आर प्लग. ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या है मदरबोर्ड है. आपका जो सीपीयू रहता है सीपीयू को अटैच रहता है उसको कौन से पार्ट्स अटैच रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर कार्ड्स.
जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, रैम, रोम, ये सब क्या है यहाँ पे अटैच रहते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन फिनिश होता है। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर? फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, which of the following generation computers use the artificial intelligence technique? artificial intelligence technique कौन सी जनरेशन में यूज की गई थी? फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट, the CPU of the computer is also known as, आपने अभी देखा CPU को दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, डी, which is the main circuit board of the computer where the microprocessor is plugged? आपका माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे प्लग रहता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा परमानेंटली? जो आपका डेटा रहता है वो कहाँ पे परमानेंटली सेव रहता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स। मीन्स यूजेस स्ट्रिप ऑफ आइवरी बोन्स। आइवरी बोन्स कौन से मशीन में यूज किया था? नेपियर बोन्स। यूजेस सेट ऑफ व्हील्स फॉर कैलकुलेशन। व्हील्स कैलकुलेशन करने के लिए व्हील्स किसमें, कौन से मशीन में यूज किए गए थे? पास्क लाइन। नेक्स्ट, पेज नंबर 10, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ स्लाइडिंग बेड्स अरेंज ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम। वुडन फ्रेम कहाँ, कौन से मशीन में यूज किया गया था? एबेकस। Next, developed by Charles Babbage in 1822, difference engine. Next, define the basic elements of a modern computer, analytical engine. यहाँ पे आपको क्या दिए गए? शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, उसका आपके क्या है? फुल फॉर्म लिखनी। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन रोम, रीड ओनली मेमोरी। देन सीयू, कंट्रोल यूनिट। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जीबी, गीगाबाइट। एमबी, मेगाबाइट। ये क्या है? आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए और उसके आपको फुल फॉर्म लिखनी। आपको ये जो एक्सरसाइज है ये बुक में भी लिखनी है पेंसिल से, और एज इट इज नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, मैच द कंप्यूटर जनरेशन विद द टेक्नोलॉजी यूजेस इन देम। जनरेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। ठीक है, तो आपको क्या है? उनके पेयर्स ऐड करने। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था आपका? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? देखो बैक साइड पे दिया है आपको। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर यूज वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था, इसके लिए उसका आंसर क्या है? ये वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? देखते हैं हम। देखो, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, है ना। देन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था वो देखते हैं हम। ये देखो, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो क्या यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया था? वीएलएसआई, है ना। उसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मींस वीएलएसआई फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। और जो आपका फिफ्थ जनरेशन है, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या तैयार किया था? रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज किया था, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है ये कैलकुलेशन है। हाउ मेनी बिट्स एंड बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस वर्ड, है ना। आपने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। देखो पेज नंबर 7 पे आपने एक एग्जांपल देखा था। प्ले मतलब ये वर्ड कितने
अल्फाबेट्स का है PLAY मीन्स 4 डिजिट का है ना, 4 अल्फाबेट्स का है। तो उसके लिए कितनी बाइट्स यूज किए जाते हैं? 4 बाइट्स और 32 बिट्स यूज किए जाते हैं। तो इसी के हिसाब से लाइन भी 4 वर्ड का है, इसके लिए 32 वर्ड्स यूज किए गए हैं, मतलब है ना। जो आपका और बिट्स कितने यूज होंगे? 4 बिट्स। क्यों? क्योंकि ये 4 वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड के लिए कितने बाइट्स लगेंगे? 56 है ना, और बिट्स कितने लगेंगे? 7। सॉरी, लाइन के लिए आपको 32 बिट्स लगेंगे और 4 बाइट्स यूज करने होंगे। इंग्लिश वर्ड के लिए 56 बिट्स यूज होंगे और 7 बाइट्स यूज लगेंगे। मनी के लिए MONEY, ये कितने डिजिट का अल्फाबेट का है? 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बाइट्स यूज होंगे और 40 बीट्स यूज होंगे। ठीक है, एक कैलकुलेशन कैसा है देखो, जब आपके एक बाइट यूज होता है तब आपके 8 बिट यूज होते हैं। वैसे आपके अगर 4 बाइट यूज होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। नेक्स्ट है ना, एक्टर, एक्टर में कितने वर्ड है अभी? 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बाइट्स यूज होंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। नोटबुक में कितने वर्ड है? अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाइट यूज होंगे और उसको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। Is that clear? Next question number 6. Read the description and write the letter against the correct computer. So they can be carried and use while traveling. Traveling करते समय आपका क्या यूज किया जाता है? कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? लैपटॉप है ना, मीन्स माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट बी क्या है? दे ऑपरेट्स एट हाई स्पीड एंड आर यूज इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज किया जाता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। सी, दे आर यूज इन अ एरिया लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड एयरक्राफ्टिंग डिजाइन। फोरकास्टिंग एंड एयरक्राफ्टिंग डिवाइस डिजाइनिंग करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता था? सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सी आएगा। दे आर जनरली यूज इन अ स्मॉल टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं तो उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? डी, मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी वेरी डैश डैश स्केल डैश डैश इज द टेक्नोलॉजी यूज इन द 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना। नेक्स्ट बी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। देन डैश डैश इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल टुडे। तो उसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, द कंटेंट्स ऑफ डैश डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर लाइट चली जाती है तो रैम में जो डेटा रहता है वो क्या चला जाता है? वो लॉस्ट हो जाता है। तो उसका आंसर है रैम, RAM। Then the dash dash is perform all the mathematical and logical operations. Mathematical and logical operations करने के लिए किसके यूज किया जाता है? ALU means arithmetic logic unit. Then dash dash store start up instruction for booting the computer system. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो किसका यूज होता है? ROM। देखो यहाँ पे दिया है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। अगर 1 बाइट स्टोर करने के लिए कितना बिट्स लगते हैं? 8 बिट्स लगते हैं। Next, true or false. Write T for true and statement and F for false statement. IBM 7090 is an example of the second generation computer. उसका आंसर क्या है? True. Third generation computers use vacuum tubes. उसका आंसर क्या है? False है ना, क्योंकि थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का नहीं यूज किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। A computer has a primary and secondary memory. Right or wrong? ये क्या है? राइट है, मीन्स ट्रू। ए बीट इज डिनोटेड बाय बी, उसका आंसर क्या है? फॉल्स है ना, क्योंकि बीट स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसका आंसर है ट्रू। Blaise Pascal invented Pascaline in
42, इसका आंसर क्या है? ट्रू। ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज हो गई है और आपका जो ये फर्स्ट लेसन है तो ये भी फिनिश हो गया है। तो आपका जो यूनिट टेस्ट में एग्जाम रहेगी, टेस्ट रहेगी, वो लेसन नंबर फर्स्ट पे रहने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपको जो आपकी कंप्यूटर की नोटबुक दी गई है उसमें आपको ये पूरा एक्सरसाइज राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।